Ashish Kundra, Principal Secretary cum Transport Commissioner, Delhi Transport Department. Mr. Manish Raj Singhania, President FADA, and Ms. Garima Mishra, State Chairperson FADA. A big round of applause for all the dignitaries on the dais. I request all the dignitaries to kindly come forward for the paramount MOU ceremony between FADA Delhi and Delhi Transport Department. Ladies and gentlemen, this is a very important MOU ceremony between FADA Delhi and Delhi Transport Department. Ladies and gentlemen, kindly put your hands together for this very vital MOU between FADA Delhi and Delhi Transport Department. Our gratitude to all the dignitaries on the dais. And now I would request Ms. Garima Mishra, Chairperson FADA Delhi, to kindly address the August gathering on the occasion. Good evening, everyone. Thank you so much for your presence at this August moment. They say that it's about luck when you're born and in what time. And I think I consider myself very lucky being the state chairperson for Delhi at this moment, where we have such a remarkable transport minister, Kailash ji, and equally remarkable Commissioner of Transport, Ashish ji. They have created wonders during these COVID years. When we all thought that automobile was sleeping, these two men at the helm of affairs made things change like how. They have digitized, they have made the transport process completely faceless. I must share with you that today it happens so that dealers themselves don't believe this kind of automation is possible. People have come back to me talking about the TC renewal process, and they have not believed me when I've told them that all they have to do is upload the documents and the TC will be in their office. It has happened. The Delhi government, the Delhi Transport Department is the only department which is truly faceless from end to end. A customer, to getting his RC copy today, does not need to interact with the Transport Department. That is the level of automation. That is the level of customer centricity that this department has shown in the past 2 years. I am extremely grateful for the support, for the foresightedness that this department has shown. I am extremely happy to say that we at Delhi have been the first ones to sign an MOU with the Transport Department. कहने को एक कागज़ है, वो तो शादी का सर्टिफिकेट भी एक कागज़ ही होता है, पर ये एक रिश्ता है which shows that at any point of time, in any of it's a mutual agreement wherever the Transport Department comes with policies and rules, we have requested them for us to be a part of it. We can be an extended arm to ensure that that communication reaches to the 300 plus dealers that are functioning in Delhi. Wherever the dealers have a problem, we have a SPOC with them, and we can go to them with those problems and solve them as well. This is going to be a partnership of sorts. I really hope that going forward, we can make this more and more, what should I say? I mean, it should give us more advantage as we go forward with this. I would also request that if we can have monthly meetings with the Transport Department, FADA can have a monthly meeting with the Transport Department
on the progress of the month, on the issues that will also help us strengthen this relationship further. So, taking no more time, I would request our Commissioner of Transport, Ashish ji, to come and say a few words. Honorable Minister Transport, Shri Kailash Gehlot ji, Shri Singhania, Garima ji, other, I can see Mr. Gulati and Mr. Damania and other representatives of FADA. It is a matter of great privilege for us to be here, and I think this document which we have signed is truly representative of the spirit which it defines, the spirit of partnership as was brought out. In today's day and age, we cannot afford to, either of us, view each other as adversaries or sitting in different silos. We are all working for a common cause, and I think to that end, it is our duty and responsibility to facilitate that things in a manner that people and citizens and customers find it easier to get things done. So that historical legacy of how government was and how it has been should change. And similarly, I think it is for the private sector, for the dealers and who are also engaged in so much of outreach and sale and also contributing to the economy, to step forward and give their contribution for certain larger social goals. So I would urge on this platform all of you to tell us how is it that you can help. How is it we can help, you tell us, and we'll walk the extra mile. But equally, we would expect that you would come forward and tell us what is it that you can do for society. Whether it is on issues of road safety, whether it is in issues of better driving behavior, whether it is in terms of creating a better road sense, whether it is in terms of getting better technology. What is it that you can bring on the table either as dealers or through your OEMs whom you represent? I think it's a different time and a different age and a different India that we live in. And in this time and age, it is as equals that we have to talk. So while, as I said, we do our bit in our limited fashion, of course, I'm not saying we are perfect. We also learn, we also evolve, and certain things we don't understand what are the pain points which all of you will bring to us. But as we go along, let us create a robust model of partnership between industry and government, which can be replicated and scaled not just in other sectors but in other parts of the country. So I won't say much, but I would just say that Honorable Minister has been very supportive. He has a very, very positive mindset and approach. And that gives us strength and courage to take very bold steps as well. Thank you very much. Can I now request our Honorable Minister Sahab to come and say a few words, please? मेरे ख्याल से दिल्ली के डीलर्स तो है ही, लेकिन पूरे देश के, जैसा मुझे बताया गया, पूरी कंट्री के अलग अलग कोनों से आए हुए सभी यहाँ डीलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, पूरी जो फाडा की टीम है, वेंकटेश जी हैं, मनीष जी हैं, गरिमा जी, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर आशीष कुंद्रा जी, सभी को नमस्कार। और एक बार फिर फाडा के अलग अलग प्रोग्राम में आके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इसी बहाने आप सभी से मुलाकात हो जाती है। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पिछले काफ़ी सालों से एक बहुत ही अच्छे कोलैबोरेटिव एफर्ट में बहुत काम हुए। शिक्षा और हेल्थ के में जो काम हुए वो तो अक्सर काफ़ी लोगों को पता रहता है, बट आई थिंक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जैसा कि गरिमा जी ने भी कहा, कि अगर
अगर आप ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, दिल्ली के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को आज से अगर 7 साल पहले के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से कंपेयर करें तो कम से कम दिल्ली के जो डीलर्स यहाँ मौजूद हैं वो इस बात से ज़रूर एग्री करेंगे कि काफ़ी बदलाव आया है वाकई में, या सिर्फ हम ही अपनी तारीफ करते जा रहे हैं? वाकई में आया। प्रोग्राम के शुरू होने से पहले जब ऐसे ही बातचीत हो रही थी तो गरिमा जी कह रही थी कि काफ़ी, ये आशीष जी आप भी सुनिएगा, तो गरिमा जी कह रही थी कि आजकल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काफ़ी सपोर्ट मिलता है हमें। तो मेरा सिर्फ इतना ही कहना था, हमने कुछ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को छोड़ा हो तो, मतलब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास आज के दिन अगर सही पूछें आप, and I'm saying in this everything in a very in the right perspective, कि डिपार्टमेंट का सपोर्ट आपको जब चाहिए जब उनके हाथ में कुछ हो, कोई फाइल जाती हो, किसी अधिकारी को साइन करना हो, कोई अप्रूवल उनको चाहिए। तो पिछले लगभग, ये अनिल शिकारा जी बैठे हैं, एमएलओ है यहाँ पे, अब इनके पास पावर कोई बची नहीं, लेकिन आई थिंक जो भी बदलाव हुए बहुत अच्छे हुए। और मेरे ख्याल से अगर कोई भी सरकार, कोई भी सीएम, कोई भी मंत्री, अगर जनता खुश है एंड इफ द सिटीजन्स आर हैप्पी, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा किसी सरकार को, किसी सीएम को, किसी मंत्री को और कुछ नहीं चाहिए। And that is what exactly we have been striving to do in Delhi in last 7 years. Across transport department, I think we have made significant changes to the effect कि आपको हमारे किसी भी अधिकारी के पास किसी भी ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। जो डीलर्स दिल्ली के बाहर हैं, तो हमने लास्ट ईयर जब फेसलेस सर्विसेज स्टार्ट की तो उसको हाईलाइट करने के लिए हमने सीएम साहब को रिक्वेस्ट किया, जी आप जो हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस है आप उस पर ताला लगा दीजिए। तो उन्होंने कहा आप ये कैसा काम करा रहे हो मेरे से, सरकार और सीएम तो इनॉग्रेट करते हैं। तो देन वी एक्सप्लेन एवरीथिंग कि जी हम ताला ऑफिस पे नहीं लगा रहे हैं, हम ताला किस चीज पर लगा रहे हैं, वो है कि जहां वो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, हजारों की संख्या में जब हर दिन एक ट्रांसपोर्ट ऑफिस, आरटीओ और एमएलओ के पास जो हजारों लोग आते हैं दिन में, उन पे हम ताला लगा रहे हैं। जो करप्शन वहां पे है उस पे हम ताला लगाना चाहते हैं। एंड एज ए मिनिस्टर आई थिंक आई एम सेइंग विद ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि व्हेन आई बिकेम मिनिस्टर, तो मुझे सिर्फ यही सुनने में आता था कि जी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रिश्वत के बिना कोई काम नहीं होता। आई थिंक उस पे हमने ताला लगाया है, उस पे हमने वाकई में ताला लगाया। आज मेरे ख्याल से अगर आप हमारे किसी भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस चले जाएं या कोई आरटीओ चले जाएं, तो ऑफिस वगैरह बहुत अच्छे बने हैं लेकिन वो बिल्कुल खाली हैं। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी वांटेड। हमारा जो पूरी आम आदमी पार्टी का जो एक सोच रही है ऑनरेबल सीएम अरविंद केजरीवाल जी की के लीडरशिप में, कि जो सरकार है वो आपके पास खुद आके काम कर रही है। एंड यू विल बी आई थिंक प्लीज टू नो कि फेसलेस सर्विसेज हमने, अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, जितने यहां डीलर्स मौजूद हैं, एनीवन कैन आंसर, आई वुड बी आई थिंक हैप्पी इफ को दिल्ली के जो बाहर जो डीलर हैं अगर वो इस बात का जवाब दें। फेसलेस सर्विसेज आप क्या समझते हैं? नहीं वो फेसलेस नहीं हुआ ना, फिर वो तो एक ऑनलाइन का एक सिर्फ
then you don't need to see face to face at all. That's faceless. And I think that's what Delhi government has done. आप कुछ कहना चाह रहे थे? रेड टी शर्ट, रेड। Involvement of officer or interface of officer or employee in the system. नहीं, इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा क्योंकि फाइनल अप्रूवल तो ऑफिसर को देनी पड़ेगी, बिकॉज बट आई थिंक जो आप भी जो कह रहे हैं, मतलब बट आपने जो कहा कि नो फेस टू फेस इंटरैक्शन विद द ऑफिसर, एनीबडी एल्स फ्रॉम ओनली ऑनलाइन प्रोसेस। No under the table money. When you don't know, नहीं वो फीस जो है, फीस तो आप दोगे ही, तो फीस, अच्छा द अदर मनी यू टॉकिंग अबाउट। सो ऑनलाइन एंड फेसलेस ये दोनों बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हैं। फेसलेस सर्विसेज, जैसा कि जेंटलमैन ने कहा कि जहां पे आपका अधिकारी के साथ कोई फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं है, तो फेसलेस करने से पहले आपके जितने भी मोड्स हैं वो सारे ऑनलाइन होने जरूरी हैं। लेकिन ऑनलाइन और फेसलेस में बहुत अंतर है। जैसा कि मनीष जी ने कहा कि ऑनलाइन पेमेंट तो हो सकती है, लेकिन फाइल जो है वो आपको फिजिकली जाके डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो वो एक छोटा सा पार्ट जो है वो ऑनलाइन हुआ, लेकिन फेसलेस नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की अगर सपोज आज के दिन 47 अगर सर्विसेज हैं जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट अलग अलग तरह की सर्विसेज देता है, तो 47 में से 45 सर्विसेज जो है वो फेसलेस है आज के दिन। और दो सर्विस जो है वो कौन सी बची है जो कि फेसलेस नहीं हो सकती? वो है गाड़ी की फिटनेस, जो कि गाड़ी आपको लेके जानी पड़ेगी इंस्पेक्शन के लिए, और दूसरा है परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के टाइम जो आपको स्किल टेस्ट देना है अपना। तो ये दो सर्विस छोड़ के बाकी सारी जो सर्विसेज हैं वो फीसलेस हैं। तो इसका मतलब आपको 45 सर्विसेज अवेल करने के लिए, सपोज आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराना है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं आपको, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स इन प्लेस हैं तो आपको किसी भी ऑफिस में जाने की, किसी भी अधिकारी के पास जाने की, किसी भी दलाल को ढूंढने की आपको बिल्कुल भी 1% भी आपको जरूरत नहीं है। आपको अपना चेंज कराना है एड्रेस, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको अपना लर्निंग लाइसेंस अगर बनाना है तो आपका फेस जो है वो फेस जो रिकग्नाइज करता है सॉफ्टवेयर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए, आपको लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए भी आपको जरूरत नहीं है। आप अपना टेस्ट कहीं भी बैठे हैं, घर में बैठे हैं, ऑफिस बैठे हैं, देश के बाहर हैं, आप वो टेस्ट आप अपने कंप्यूटर पे आप वो दे सकते हैं। आपका जो आधार कार्ड में जो फोटो है और आपका जो कंप्यूटर का जो कैमरा जो फोटो को कैप्चर करेगा, उन दोनों को मैच करेगा एंड यू कैन गिव द टेस्ट ऑनलाइन और आप अपना बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हमने की, अगर सही पूछे तो हमें भी यकीन नहीं था कि हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, लेकिन सबके सहयोग से माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में, एंड आई थिंक 1 पर्सन अगर मैं उनका नाम नहीं लूँगा तो वो ठीक नहीं होगा, दैट इज आशीष कुंद्रा हु मेड द डिफरेंस। मैं तो बोलता रहूँगा ऐसे, बट आई विल कट शॉर्ट। मैं सिर्फ कुछ नंबर्स आपको बताना चाहता हूँ कि सो दैट आपको ये ना लगे कि भाई हम सिर्फ बोल के चले गए, इसका रिजल्ट क्या रहा। सो लास्ट ईयर अगस्त से लेके अभी तक मोर देन 22 लाख पीपल हैव अवेल्ड फेसलेस सर्विसेज। 22 लाख से ज्यादा लोग, छोटा नंबर नहीं है एक साल के अंदर। मतलब 22 लाख पीपल हैव नॉट विजिटेड एनी ऑफिस। व्हेन आई से एनी ऑफिस, मतलब कि कोई विजिट नहीं हुआ किसी अधिकारी के साथ। आई थिंक आपका एक्सपीरियंस रहा है, किसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं, एब्सोल्युटली फेसलेस।
आई थिंक डीलर पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने एक कदम लिया कि और ट्रांसपेरेंसी और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे आगे बढ़ाएं, वो भी हम बहुत टाइम से करना चाह रहे थे. दैट वाज प्रिंटिंग ऑफ द आरसीज एट डीलर एंड. तो शुरू में जब चर्चा हुई तो अब देखिए इसमें एक जो चीज़ बड़ा आई थिंक आई वाज टेलिंग मनीष जी, और यहाँ से आने से पहले आई थिंक आप कह रहे थे कि और स्टेट्स में उनको समझ में नहीं आ रहा. तो मेरा सिर्फ कहना यही है कि समझ सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आता, लेकिन कोई अपनी पावर और कोई अपनी अथॉरिटी छोड़ना नहीं चाहता. कोई भी ऑफिसर, अब आशीष कुंद्रा जी ये सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, थोड़ा लाइन से हटके हैं, बट कोई ऑफिसर चाहे वो एमएलओ है चाहे सीनियर पोजीशन पे, कोई भी अपनी अथॉरिटी छोड़ना नहीं चाहता. लेकिन आई थिंक जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और ब्यूरोक्रेसी उनका जब एक बढ़िया तालमेल बैठता है तो आई थिंक वी कैन डू वंडर्स. और जीता जाता एग्जाम्पल आपके सामने जो दिल्ली में हुआ. आई थिंक मोर देन 5 लाख जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स हैं, जो आरसी हम बोलते हैं, तो पिछले 1 साल के अंदर, आई थिंक 1 साल भी नहीं हुआ, आई थिंक दैट वाज इन फेब, आई थिंक नॉट इवन अ ईयर, I think more than 5 lakh RCs have been printed and delivered to customers then and there. तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम सभी के लिए. और जितने भी डीलर्स जो दिल्ली से नहीं हैं, मैं उनसे यही अनुरोध करूँगा कि आप सब लोग भी अपनी अपनी सरकारों पे, अपने अपने सीएम पे ये ज़रूर बताएं जाके कि दिल्ली में जब हो सकता है तो फिर और स्टेट्स में क्यों नहीं हो सकता. आई थिंक दैट विल बी अ बिग चेंज. जो दिल्ली ने एक लीडरशिप लेके और एक बोल्ड स्टेप लेके जो चीज़ें यहाँ शुरू की, आई विल बी वेरी हैप्पी एज अ मिनिस्टर, एंड आई थिंक वी ऑल विल बी वेरी प्राउड कि वो आहिस्ता आहिस्ता सभी पूरे देश में और पूरे अलग अलग स्टेट्स में ये फॉलो हो. आज एमओयू भी जो साइन किया उसकी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं. वैसे तो हम वी आर ओनली 1 phone call अवे. अगर फाडा से किसी का मैसेज भी आता है तो हम तुरंत उस पर रिएक्ट करते हैं. एंड वी आई थिंक लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी हैव ऑलवेज इंश्योर्ड कि अगर फाडा को या किसी भी अगर डीलर को कोई भी परेशानी कहीं पे आ रही है तो आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ बीन देयर ऑल 365 days in a year. आई विश कि इस तरह की जो एमओयूज़ हैं और उसमें जो आई थिंक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या जो क्रिएट किया है ये बढ़िया से चले. एंड आप जो मीटिंग्स के बारे में बात कर रहे थे तो वी आर ऑलवेज अवेलेबल. आप जब भी मीटिंग करना चाहें, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर इज़ ऑलवेज अवेलेबल. रादर वी लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग्स जहाँ पे हम और ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकें और किस प्रकार से और हम पूरे सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बना सकें और इसको कन्वीनियंट बना सकें. तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. और एक बार फिर दोबारा पूरी फाडा को, पूरी फाडा की टीम को, आई थिंक गरिमा जी की लीडरशिप में, जैसे आप कह रहे थे कि ओनली फीमेल एंड 1 फीमेल आई सॉ, आई थिंक वो चली गई है उनकी, नहीं यू आर देयर. I also hope that in the coming times, in coming years, we have more female who are representing FADA. And जैसे हम अक्सर बात करते रहते हैं, मैं और आशीष कुंद्रा जी की, थोड़ा जल्दी है लेकिन बट वी वर लाइक डिस्कसिंग कि हमारा ऑल फीमेल बस डिपो हो, जिसमें सारी बसें जो हैं ड्राइवर्स फीमेल हो, हमारे बस मार्शल फीमेल हो, पूरा डिपो मैनेजर फीमेल हो. तो आई ऑल्सो होप कि वो दिन जल्दी आए कि जब आपकी पूरी डीलर और पूरा शोरूम और ऑपरेशंस वो सारी जो है वो फीमेल कंट्रोल करें. आई वंस अगेन थैंक द एंटायर फाडा सो मच. थैंक यू. Thank you so much, Honorable Minister. We are indebted
for your august presence on this occasion and heartily appreciate you sparing your precious time for us. And now, ladies and gentlemen, I would invite Mr.